تو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کیا کہا ہے قرآن میں؟ ہم تو قرآن ہمارے ہر گھر میں قرآن ہے، لیکن اٹھاتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ کتنی بھی مجبوری ہو، 2 روٹی سوکھی وہ بہتر ہے، وہ کھا لینا اچھا ہے۔ یہ بیاج لینا، بڈی لینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ہم اور آپ کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہاں تو ہم تکلیف اٹھائیں گے، یہاں تو ہم تکلیف بیاج لے کر کے، پیسے لے کر کے تکلیف اٹھائیں گے، کما کما کے محنت کر کر کے اس کو بیاج دیتے رہیں گے، لیکن آخرت میں بھی اس سے معافی نہیں ہے، آخرت میں بھی اس سے معافی نہیں ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہمارا بزنس ہے، دھندا ہے، اس میں ہم لے لیتے مجبوری سے، لیکن یہ مجبوری بہت خطرناک ہے۔ یہ یہاں بھی اور اللہ کے لیے، اللہ کے یہاں بھی، آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ لینے والے دینے والے سب کا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنتے ہیں ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جو ہے حلال کیا ہے، اور بڈی جو ہے بیاج ہے، ربا، اس کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَدَا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا جب یہ فرمان آ پہنچا، اس کے بعد بھی کسی نے دیا لینا دینا کیا، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ایسے لوگ سننے کے بعد اگر کام یہ لینا دینا بند کر دیے، چھوڑ دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں، اگر پھر بھی نہیں مانے تو، نہیں سنے تو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آگے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا يُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے صدقے کو جو ہے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ کسی ناشکرے کا اور کسی گنہگار کا اللہ تعالیٰ دوست نہیں ہے اور نہ دوست بناتا ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ اگر ایسے ہی کام کرتے رہے تو نہ ان کو گنہگاروں کو دوست بناتا ہے، اور نہ ان کو یہ کوئی بھی ٹھکانہ ہے اللہ کے وہاں، ان کا ٹھکانہ صرف جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب یہ کس کے لیے؟ یہ جو بیاج سے پیسے کھاتا ہے، یہ بیاج سے جو لے کے پیسے کھاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی بیاج کا لینا دینا بقایا ہے، جو بھی لیتے دیتے ہیں، بیاج سے لینا بند کرو، اگر نہیں لیے تو جہنم میں جائیں گے۔ میں ایسے لوگوں کو، جو ایسے کام کرنے والوں کو میں دوست نہیں بناتا، یہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے ایمان والوں، اگر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بیاج لیتا ہے وہ کسی کا اگر وہاں سے بند کر دے، وہاں سے چھوڑ دے، اس کے بعد وہ نہیں لینا، بقیہ جو ہے اس کا، ابھی جو غریب آدمی ہے، مسکین ہے، جو بھی تم اس کا باقی ہے پیسہ، وہاں سے اس کو، اگر یہ آیت سن لیے، تم سمجھ لیے، تو وہاں سے اس کا باقی جو رہے گا وہ پیسہ وہاں سے چھوڑ دو، اس کو مطلب جو بیاج جو تم لیتے ہو ادھر سے اس کو بیاج لینا بند کرو، جو باقی جو اس کا، جیسے اس نے اصل لیا ہے، وہ اصل جو ہے اس سے تھوڑا تھوڑا اصل لیا کرو، اصل لے لو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جو اصل ہے وہ لو،
اور جو ब्याज का है वहां से अगर तुम ये सुन लिए तो वहां से उसको खत्म करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाहा वज़ूरू मा बकिया मिनर रिबा और इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, मोमिन हो, अगर ईमान वाले हो, मोमिन हो, तो उसका जो बकिया है, जो लेना देना है, जो हो गया, इसके बाद से ब्याज मत लो, जो पैसा असल है वो लो, अगर तुम ईमान वाले हो तो। उसके बाद अल्लाह ताला का फरमान फ़इन लम तफ़अलू फ़ज़ानू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली इन तुबूतुम फलकुम रूसु अमवालिकुम। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं जो ब्याज लेके लोगों को पैसा देता है उसके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़इन लम तफ़अलू फ़ज़ानू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, वो तैयार हो जावे। व इन तुबूतुम फलकुम रूसु अमवालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून, वो तैयार हो जाए किसके लिए, अल्लाह के साथ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने के लिए। अब सोचो कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही है। ब्याज जो पैसे लेकर खाने वाला अगर सही ईमान वाला है तो वहां से वो बंद कर देवे, अगर फिर भी उसका लेना चालू रहा तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ने के लिए, जंग करने के लिए अल्लाह की तरफ से ऐलान है जंग का, अल्लाह की तरफ से ऐलान है जंग का कि तैयार हो जावे जंग के लिए। अब सोचो कितनी बड़ी बात है। आजकल के जमाने में लोग जो है ले रहे, ब्याज से पैसे ले रहे, खा रहे, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। गरीब आदमी मरता जा रहा है, इधर से उधर से मेहनत कर रहा है, पैसे कमा कमा के लाके दे रहा है, उसका घर बीवी बच्चे भूखे मर रहे। कितनी जो है ऐसे हमारे मोमिन भाई लोग, ये तो चलो अल्लाह ताला ने वो जमाने में भी जो लोग थे उन लोगों को भी मना किए, और ये सारे कयामत तक ये जो है बात है अल्लाह ताला की कि लेना देना हराम है, नहीं लेना। अगर लेने देने वाला ऐसा लेते रहा तो उसका ठिकाना जहन्नम में। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, अगर तुम मोमिन हो, सच्चे हो, ईमान वाले हो तो यहाँ से सुन लेने के बाद बंद कर दो, लेना देना बंद कर दो, और जो उसका बकया है उसका जो है, जो असल है वो थोड़ा थोड़ा लो, उसमें भी उसको ज्यादा तुम्हें ये तकलीफ नहीं देना। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो व इन काना ज़ू सूरातिन फनाज़िरातुन इल्ला मैशरात व अन तसद्दक़ू खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून। और अगर कोई तंगी वाला आदमी हो, तकलीफ हो उसको, तो उसको जो है धीरे धीरे लो, जो असल है। अगर वो भी वो दे नहीं पाता है तो उसको सदका समझकर माफ कर दो। देखो कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही है। हम आज के मुसलमान जो है खा रहे, ले रहे, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन इनका ठिकाना क्या होगा, सीधा जहन्नम। उनकी नमाजें बेकार, इबादत बेकार, उनका खाना पीना सब बेकार है, सब हरामी हो गया हो। जैसे तुम इतनी मेहनत करके आदमी, जब वो गरीब आदमी इतनी मेहनत करके तुम्हारा ब्याज लाके दे रहा है, उसका मेहनत का पैसा तुम खा रहे तो हराम में जा रहा है, तुम्हारे लिए हराम है वो। लेकिन उसके घर में बीवी बच्चे उसके भूखे प्यासे मरते, और वो कैसे भी डर के लाके वो पैसे जमा करता है। तो कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही है। अगर तुम्हारे दिल में ईमान है, रहम करो उसके ऊपर, उसको जो है उसका बकाया जो है असल लो। अगर वो भी नहीं आता सदका समझ कर छोड़ दो, वो तंगी है, दे नहीं सकता, गरीब आदमी है। तो कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही है। देखिए वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम में इल्म हो, जरा भी तुम ईमान वाले हो, और इस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह के सामने आपको पेश किया जाएगा। जब आपके सामने
अल्लाह ताला के सामने आपको खड़ा किया जाएगा। उस दिन से डरो, उस दिन को याद करो। हर शख्स वो उसके अमाल देखेगा, उस दिन हर शख्स उसके अमाल देखेगा और उसके गुनाह जो है वो सामने पाएगा। तो सोचो, उस दिन से डरो। अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। उस दिन से डरो कि हम जो है आज कितने जो है ब्याज से पैसे खा रहे, गरीबों को मार के पैसे खा रहे। आज जो है गरीबों के लिए ये सबसे बड़ा कैंसर है। आज कहाँ भी देखो गरीबी मर रहा है इसमें। कोई अमीर ब्याज से पैसा ले, कोई अमीर नहीं हो जा रहा है, ना अमीर होके वो ब्याज को जरूरत ही नहीं है पैसे लेने की। लेगा कौन? गरीब ही लेगा। उसके धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, उसके कुछ काम होते उसके लिए लेता है। बेटी की शादी के लिए हुआ या कुछ भी हो, उसके बाद में वो दे नहीं पाता। इतनी उसकी हालत खराब है। कैंसर जैसे एक बीमारी है, वो कैंसर की बीमारी जैसे उसको जो है लग जाती है और सारी जिंदगी उसी में बर्बाद होके चले जाता है। तो अल्लाह ताला लेने वालों को और देने वालों को दोनों को मना कर रहे। लेने वाला है, अगर समझ गया, सुधर गया तो लेना बंद करे, वहां से खत्म करे। अगर वो लेते रहा फिर भी, तो अल्लाह ताला उसको दोस्त नहीं बनाएंगे। आगे आपने सुना है, अल्लाह ताला उसको दोस्त नहीं बनाएंगे। अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा, जब सुनकर भी मेरी बातों को जो है ईमान नहीं लाए और सही रास्ता नहीं पकड़े। तो अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ में ऐलान जंग है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। क्या हम और आप लड़ाई के लिए तैयार हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ? ये हमें और आपको सोचना है। हम ब्याज का पैसा ले रहे, खा रहे और हराम का खा रहे, ये हमें सोचना है। कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही है सूरह बकरा आयत नंबर 275 से 281 में यहाँ से 275 से 281 तक का मैंने आपको सुनाया। और भी कई जगह पे अल्लाह ताला ने रिबा के बारे में कहा है। ये बहुत बड़ी आयत है, लेकिन ये हमें समझना है। हमारे घर में कुरान है, हम मोमिन हैं, हम कुरान उठाते नहीं, पढ़ते नहीं। ये किस लिए कुरान है? हमें समझकर चलने के लिए। हर चीज का सॉल्यूशन, हर चीज की जो है इसके अंदर आपको समझ में चलना, इस रास्ते पे चलना बोल के हर चीज का जो है इसके अंदर, कुरान के अंदर हर बातें मौजूद है कि आदमी समझे, सुधरे और सही रास्ता पकड़े और सही रास्ते पे चले। अगरचे गरीब है, कितना भी है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो तंगी में भी है, तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखे। अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर करेगा, अल्लाह उसकी तकलीफ परेशानी को दूर करेगा। लेकिन ये ब्याज लेना, ये करना, हराम काम करने से ये हर इंसान जो है हमेशा के लिए जो है गड्ढे में गिरता जाता है। एक दलदल में गिरता ही चले जाता है। जैसे आदमी गिरा तो उसको निकालने वाला कोई नहीं, जब सोचो वो अंदर फंसते ही चले जाता है, उसका अंजाम क्या होगा फिर? ना उसको कोई बचाने वाला है, ना कोई है। हाँ, अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाते करके बोल दिए। कौन बचाएगा उन लोगों को? सीधा उनका ठिकाना जहन्नम होगा। इसके लिए आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है। ये रमजान का महीना शुरू है, अभी भी संभल जाओ, सुधर जाओ, अल्लाह से डरो और सही रास्ता पकड़ो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अन्तस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।